welcome. I already promised I will be doing the polarization on the PPT. So let's start without wasting time. So observe this image carefully. This is also a good explanation for the Brewster law, where we observe a partial reflection and partial reflection. How we are observing the partial reflection? As we can see the light on the surface, as we are observing the light, so it must be reflecting back. We observe the things only when it reaches to our eyes. So as we are observing the color, light, it must be reflected. That light which is reaching towards eye, having low intensity, but it is polarized light. So see this, it is actually the polarized light. So this is one of the phenomena. Now we will understand the polarization one by one. Okay, so be focused. Okay, next start. So I already told polarization is possible for only a transverse wave. Transverse wave means light wave. Now we are using the animations for same. Let's start. This is a narrow slit. Narrow slit means any narrow slit, like in the 8th standard, 7th standard you already done with the effect, like light आती है एक small pinhole से and it pass like transverse wave having vertical vibration. This is direction of propagation. See the animation. This is the transverse wave which is propagating to the narrow slit. See this? It is propagating without any disturbance. Okay. What you observe is the wave is propagating like this because the wave is vibrating up and down. So it is very easy for the wave to pass through this narrow slit. Okay. Now move forward. If I rotate this narrow slit, this is the wave. Now let me rotate this narrow slit. This narrow slit. Let me rotate. When I rotate this narrow slit like this, observe. Now the light is not passing. Sir, why light is not passing? Because the narrow slit only allow which type of vibration? The vertical vibration. And now as it is become horizontal, it will allow which type of vibration? It is allowing the horizontal vibration. As it is allowing the horizontal vibration, the vertical vibration will not pass. So this is the phenomena of restriction of vibration of light into a single plane. Either it is vertical, either it is horizontal. Such a Mahan phenomena, it is called as polarization. Let's understand the exact definition of polarization. This is natural source. In the natural source, light vibrate in which direction? The question is, light vibrate in the all direction. Light vibrates in the all direction. It is very important. Light vibrate in a all direction in a straight line. Okay. Now, this is, you have to answer. This is which type of wave? The natural wave which is unpolarized. Unpolarized means there is a vertical vibration as well as horizontal vibration. So this is what important. This is the source of unpolarized light. It is a representation. Now this is vertical. Vertical means a parallel to the plane of the plane of the screen. This is perpendicular means going inside. Going inside means the perpendicular. Perpendicular means going inside, and parallel means the parallel to the plane, vertical vibration. Okay. Now the important point is, this is what representation, you already know it, I already covered in the lecture. The important is only electric field vector. ये point देखे यार, पूरा point important है, ये रामबान है बिल्कुल. In the polarization only electric field vector, फिर से दोहरा रहा हूँ, कौन सा vector? Only electric field vector can be polarized. You can't polarize the magnetic field. नीट वाले ध्यान दे, electric field can be polarized, magnetic field cannot be polarized. मीन्स सर पोलराइजिंग जो हम कर रहे हैं अब तक वो कौन सी फील्ड का है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का पोलराइजेशन होता नहीं है. क्यों नहीं होता, इसका आंसर आपने मुझे बताना है. ओके, वाई द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी पोलराइज, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोलराइज. यानी अब तक जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन है. आगे बढ़े.
एग्जैक्टली डेफिनेशन बात करते हैं अक्टूबर 2009, मार्च 2010, मार्च 2015 और अक्टूबर 2018 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 2-3 बार वो लिखा है कि 3-3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेशन एक बार पढ़ ले। द फिनोमिना, एक एक लाइन टू लाइन जाता हूँ। फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ सिंगल प्लेन, कोई भी पर्टिकुलर प्लेन, कॉल्ड एज, कौन सी बेटा, द पोलराइजेशन। इट इज अ फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्शन, वर्ड रेस्ट्रिक्शन आया बेटा पूरे मार्क। Phenomena of restriction of vibration of light into a single plane called as polarization. It is very important. Take a note. Now, let's move. This is what the polarizer. Sir, what is mean by polarizer? How to do polarization? You don't explain कि actually how light get polarized. Light कैसे polarize होती है आपने कैसे explain कहीं किया ही नहीं, कैसे होता है वो तो बताओ। देखो, नेचर से अपने आप पोलराइजेशन होने वाला फिनोमिना रिफ्रैक्शन, मैंने आज क्लास में ब्रूस्टर लॉ पढ़ा है। रिफ्लेक्शन से होता है, स्कैटरिंग से अपने आप पोलराइजेशन होता है, बट आर्टिफिशियली भी पोलराइजर होते हैं। तो हमारे पास क्रिस्टल है, टर्मालाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म। देखो, टर्मालाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, आयोडोक्विनिन सॉल्ट ऑफ हेरेप्थाइट, हेरेप्थाइट भी बोलते हैं उसको, आयोडोक्विनिन सॉल्ट, ये भी आपको एज अ पोलराइजर एक्ट करता है। डाइक्रोइक क्रिस्टल भी पोलराइजर एक्ट करता है। सर होते क्या है, ये क्रिस्टल होते हैं। व्हाट इज पोलराइड, वन वर्ड में बताओ, व्हाट इज पोलराइड मींस जो पोलराइजेशन करता है, आर द स्मॉल टाइनी क्रिस्टल ऑफ द डाइक्रोइक सब्सटेंसेस। डाइक्रोइक का मतलब जो लाइट को दो भागों में तोड़े। द पोलराइजर्स आर द कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स of dichroic substance, ऐसे dichroic substance which are arranged parallel or vertical so that they can pass light having only one direction. फिर से समझाता हूं सर, पोलराइड्स क्या होते हैं? पोलराइड्स आर दी मटेरियल्स, it is made up of the small tiny crystal which are arranged parallel so that light of only one direction pass through them. Such a mahan devices called as the polaroids. In the polaroids, the molecules, small molecules having the such a type of orientation so that the light of only one direction pass through it. Sir, फिर आपने देखा होगा कोई मेडिसिन होती है, उसकी बॉटल देखो ब्राउन कलर की होती है। एरोप्लेन के ग्लास देखो आप, उसके बाद वॉचेस देखो, उसके बाद मैंने आपको 3D सिनेमा बताया था, पोलराइड सन ग्लासेस होते, लेंसेस होते। व्हाट एग्जैक्टली उनका फंक्शन है, तो लॉजिक है उसके पीछे बेटा, दे ब्लॉक अ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड अलाउ द लाइट इन ओनली वन डायरेक्शन। सच अरेंजमेंट we need for the purpose of polarization. Okay, so this is what one of the example called as tourmaline crystal. It act as a polarizer. Which polarizer, sir? Natural polarizer. Tourmaline crystal act as a natural polarizer. It is natural polarizer. Okay, now see, when light pass through tourmaline polarizer, this is analyzer. Sir, what is analyzer and what is polarizer, sir? Tourmaline crystal is both crystals are same crystal. Why they are same? Because they are having same structure, same geometry, they are same. So what is the purpose of second polarizer? Second polarizer will ensure that light passes through first polarizer is either vertical or either horizontal. देखो एक बार फिर से, सेकंड पोलराइजर का फंक्शन क्या है? पहले पोलराइजर से लाइट कौन सी आएगी भाई? वर्टिकल। यहां तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी रहेगी, पर आएगी कौन सी? सिर्फ वर्टिकल। तो ये अगर पोलराइजर है तो ये भी कौन सी लाइट पास करेगा? सिर्फ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइट को आने देगा क्या? नहीं। तो ये मेन फंक्शन है इसका, किसका? एनालाइजर का। अब देखते हैं एनिमेशन से तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, ज्यादा ये नहीं करते। तो देखो ये कौन सी लाइट है बेटा? बोलो ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज। कौन सी लाइट पास हुई? पोलराइज। अरे ये वाली लाइट जैसी गई इधर भी वही तो आई। सर क्या फर्क हुआ इसमें? सेकंड वाले ने, इसका काम क्या हुआ? इसने कुछ नहीं किया, इसने वर्टिकल लाइट को पास किया। फिर क्या? अब दूसरे स्लाइड समझे, तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, हाँ ये पोलराइजर है, इसने कौन सी लाइट पास की? देखो 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 तो कौन सी लाइट पास की? वर्टिकल। अच्छा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं सेकंड वाले पोलराइजर को, तो यहां लाइट मिलेगी क्या? नहीं। क्यों सर? क्योंकि इस वाले ने सिर्फ कौन सी लाइट पास की? वर्टिकल। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, लेट सी, अब यहां कोई भी लाइट नहीं है। इसका मतलब पहले वाले इसने
ये वाली लाइट के सिर्फ कौन से वाइब्रेशन पास किए? वर्टिकल। अगर कुछ हॉरिजॉन्टल होते तो यहाँ हॉरिजॉन्टल नजर आते ना, यहाँ हॉरिजॉन्टल नजर आते, पर यहाँ हॉरिजॉन्टल है क्या? वहाँ नो लाइट है। इसका मतलब पहले वाले पोलराइड ने सिर्फ कौन से वाइब्रेशन पास किए? वर्टिकल, जो कि यहाँ नजर आ रहे थे। सेकंड, अगर हमने उसको रोटेट किया तो हम देखते हैं वहां कौन नहीं है? हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन। यानी पहला वाला जो क्रिस्टल है वो क्या करता है? पोलराइज करता है। इसलिए सेकंड वाले क्रिस्टल को हम बोलते हैं एनालाइजर, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट कि भाई पहले वाले ने वर्टिकली ट्रांसफर किए क्या, कि इज देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन, नहीं है कोई भी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन इसने पास किए होते यहाँ कुछ, तो यहाँ कुछ दिखते, पर नहीं लाइट, कुछ भी लाइट नहीं आई। इसका मतलब ये है कि दिस एक्ट एज अ पोलराइजर एंड दिस एक्ट एज सेकंड टर्मलिन क्रिस्टल एक्ट एज अ एनालाइजर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे आगे बढ़ते थोड़ा, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, अब देखो पोलराइजर एनालाइजर का अगर एनालिसिस और करेंगे तो मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मेरे को बिल्कुल टाइप करने को बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, टाइप करते करते मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था टाइप करते, बट मतलब टाइप कर लेता हूँ बिकॉज आपको लर्न होना चाहिए। एग्जैक्टली आई नो कि आपको लर्न है, आपको याद है, तभी भी मुझे रिपीट करना मैं करता हूँ। एक पोलराइजर है, एक एनालाइजर है। देखो एनिमेशन देखो, ये लाइट है, कौन सी लाइट बेटा? वर्टिकल वाइब्रेशन। और ये कौन से वाइब्रेशन पास हुए? वर्टिकल। सर इधर भी कौन से पास होंगे? वर्टिकल। देख डेफिनेशन देख, ये क्या है सर? ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सर आपने बहुत बताया था, द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ कौन से लाइट बेटा? पोलराइज लाइट टेक्स प्लेस। क्यों पोलराइज लाइट? क्योंकि इसने कौन सी पास की? पोलराइज लाइट। यहां से कौन सी लाइट आई? पोलराइज। द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ कौन से लाइट? Polarized light takes place. Such a Mahan plane is called as plane of vibration. Okay, this is called as plane of vibration. Now, when we see the another definition, already told, it is very important actually. So another definition called as the plane which is perpendicular to the plane of vibration. It is also called as a plane of polarization. See this? It is a plane of polarization which is perpendicular to plane of vibration where no vibration of light takes place. It is called as plane of polarization. Are you getting or not? This is what the important point. You have to understand all 3 definitions. It is very important actually. All 3 definitions. Very very important. You need to understand. Okay? देखो जल्दी। हाँ, ये देखो, ये प्लेन ऑफ क्या है? वाइब्रेशन। ये क्या है? प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वेयर नो वाइब्रेशन टेक्स प्लेस कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन बताई थी, द प्लेन इट इज अ लाइट वेयर द वाइब्रेशन कौन से बेटा? रेस्ट्रिक्टेड इन कौन से डायरेक्शन? वन डायरेक्शन। डिफरेंस देख लो। पोलराइज, एक बार पूरे डेफिनेशन आपको लर्न है क्या? देख लो एक बार, आपको है क्या नहीं है। जिसने नोट नहीं किया होगा वो नोट कर सकता है। देखो, नोट कर लो। ये पूरी स्लाइड है आपके लिए, नोट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं जानता हूं कि आपको सब लर्न है, बट सर ने बोला था एक बार और रिपीट करना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोलराइज एंड अनपोलराइज लाइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन polarized and unpolarized light means polarized light which in which electric field confined to the one plane. यहाँ important word है one plane। और यहाँ कैसा है बेटा? important word है in which it vibrate in all possible direction। यहाँ word important कौन सा है? all possible direction। कभी कभी डिफरेंस भी पूछता है, पूछेगा नहीं अभी, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ कौन सा प्लेन? वन प्लेन। और यहाँ कौन से? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन देखो, अनपोलराइज लाइट ऐसी चारों तरफ, पर पोलराइज लाइट मैंने आपको बताया था ये कौन से वाइब्रेशन है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन से वाइब्रेशन है? वर्टिकल। सो दैट आपको पूरा क्लियर हो टॉपिक, इसलिए मैंने ये आपको डिफरेंस भी आपके सामने लाया है कि यहाँ वन डायरेक्शन होता है या ऑल डायरेक्शन होता है या रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिर्फ पोलराइजेशन होता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोलराइड्स के यूजेस क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों ने पूछा सर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मैं वो चैटिंग में तो आंसर दे सकता नहीं, मेरी चैटिंग स्लो है। तो लार्ज पोलराइड्स क्या होते हैं? लार्ज शीट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल
पैक्ड विद द डाइक्रोइक सब्सटेंस। डाइक्रोइक का मतलब जो किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा? स्प्लिटिंग, ओरे एंड इरे। ओरे और इरे में स्प्लिट करने वाले को बोलते हैं डाइक्रोइक सब्सटेंस। दे आर ओरिएंटेड पैरेलल, वर्ड इंपॉर्टेंट, पैरेलल टू ईच अनदर, so that light of only one direction pass through them, called as polarite. Polarites are made up of the synthetic material like tourmaline crystal, dichroic substance. They are arranged parallel, important word, they are arranged parallel. काय के लिए arrange किए? So that the light of only one direction pass through them, called as polaroid. ओके, पोलराइड्स के यूजेस है बेटा सन ग्लासेस में, पोलराइड्स फिल्टर, लेबोरेटरी, हेडलाइट्स, ग्लेयर, ऑटोमेटिक में आप यूज करते हैं, 3 डायमेंशन सिनेमा मैंने बताया, विंडोज ऑफ प्लेन, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसकी शील्ड, विंड शील्ड में होते हैं, मैंने बताया था आपको, ऑडी के वगैरह इसमें होते हैं। ये कॉमन पोलराइड का पिक्चर है, ये आप देख सकते हो कहीं भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये लैब में देखोगे, फिजिक्स के लैब में पोलराइड्स, ये अपने फिजिक्स के लैब में अवेलेबल, आप कभी भी जाओ विजिट करो, ऐसे पोलराइड्स होते हैं। तो होशियार बच्चे समझे कि एंगल चेंज करने से भी आने वाली लाइट कम ज़्यादा होती। जैसे एंगल कितना डिग्री किया मैंने, बिल्कुल वर्टिकल है तो लाइट आएगी 50%, और 45 कर दिया तो 25% लाइट आएगी। सो ये पोलराइड्स कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको अगर पोलराइड्स बनाना है, मेरे पास था एक्चुअली पर अभी दिख नहीं रहा है, मैं देखूंगा, और दिख गया तो मैं कल के वीडियो में दिखाता हूँ कि पोलराइड्स क्या होते हैं। मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, मोबाइल की स्क्रीन, किसी के घर में मोबाइल खराब वाला होगा, उसकी स्क्रीन निकालो, उसकी स्क्रीन निकालोगे, उसके स्क्रीन पे आपको एक लेयर दिखेगी ब्लैक कलर की, एक आगे होती है और एक पीछे होती है। आगे और पीछे की लेयर आप देखोगे ना तो आपको पोलराइड्स मिलेगा ब्लैक कलर का, इस प्रकार से होता है। तो उसको निकाल के आप क्या करो, दोनों को ऐसा एक में पे ओवरलैप करो, एक ऐसा पोलराइजर लो और दूसरा ऐसा हॉरिजॉन्टल लो, तो तुमको जो सरफेस दिखेगा वो डार्क दिखेगा। और अगर उन दोनों को वर्टिकली अरेंज किया आपने तो आपको कैसा दिखेगा? ब्राइट। अगर आपने इसको अरेंज किया ऐसा और दूसरे को अरेंज किया ऐसा तो आपको डार्क दिखेगा, और दोनों को वर्टिकली अरेंज किया तो आपको कैसा दिखेगा? वाइट दिखेगा। इसका मतलब पोलराइड्स वर्क करता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन। मैं देखता हूँ मेरे कौन से बुक में रखी हो, बट ये आपके फिजिक्स में लैब में अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सर आपने क्लास में पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट करो। ये नेचुरल फोटोग्राफ से अगर पोलराइड्स यूज करें ना करें, देखो ये बिना विदाउट पोलराइजर है, ये विद पोलराइड है। तो आप जो लेंसेज वगैरह यूज करते हैं वो पोलराइड लेंसेज होते हैं। तो ये पोलराइड लेंसेज क्या होते हैं? अनवांटेड लाइट को फिल्टर कर देते। तो आप इंस्टाग्राम पे फिल्टर यूज करते हैं तो वो भी एक प्रकार के डिजिटल पोलराइजर होते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग नाम की चीज होती है, यू विल अंडरस्टैंड आप सामने जाके। सो इन दैट वी यूज द फिल्टर्स। तो वो फिल्टर्स जो होते हैं इट्स ऑल्सो एक्ट एज अ डिजिटल पोलराइजर। ओके, तो ये इमेजेस है। अब देखो पोलराइजेशन कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मुझे आज स्टार्टिंग के लेक्चर में किसी ने पूछा था कि सर पोलराइजेशन कैसे कैसे क्रिएट कर दिया जाता, वो आप मेथड बताइए। तो पहली मेथड है रिफ्लेक्शन, बताई मैंने। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन कैसे? लाइट को इंसिडेंट करो, वापस बुलाओ। स्कैटरिंग, लाइट गिरती है छोटे छोटे पार्टिकल की और चारों तरफ फैल जाती है, उससे होता है। रिफ्रैक्शन से सीखा है ब्रूस्टर लॉ। प्रॉपर्टी ऑफ डाइक्रोइक प्रिज्म, डाइक्रोइक प्रिज्म का मतलब कैल्साइट क्रिस्टल लो, कॉर्ज मटेरियल लो, इनके ऊपर जैसे ही लाइट गिराओगे आप, होगा क्या बेटा? इससे आपको क्या मिलेगी? पोलराइड लाइट मिले। और लास्ट में तो आपको बताया मैंने, पोलराइड्स नाम के ग्लासेस होते हैं, ये होते हैं। इस मटेरियल से भी आप क्या यूज कर सकते, क्या बना सकते बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट बना सकते हो। तो आपको 4 पॉइंट होने चाहिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। ये इतना बुक में डिटेल में नहीं दिया बट यू शुड नो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं कि ब्रूस्टर लॉ क्या है, मैं यहाँ ज़्यादा आपको ये नहीं करूँगा। ये है बेटा म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नॉर्मल है, ये लाइट है। ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज लाइट। ये कौन सा एंगल है बेटा? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन इसलिए बोलते, एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो, उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर एंगल ओनली द लाइट गेट पोलराइज। ओके, नाउ कौन से वाइब्रेशन अंदर गए? देखो ये डॉट छोड़ना नहीं बेटा, देखो मैंने बनाने में बिल्कुल छोड़ा नहीं है। देखो डॉट, कौन सा? एक डॉट आया, बाकी डॉट इधर चले गए। इसका मतलब आप गौर से देखोगे तो यहाँ एक डॉट आया, बाकी डॉट इधर। इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया मैंने पार्शियली। पार्शियली का मतलब यहाँ वर्टिकल वाइब्रेशन भी है, कुछ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, एक ही हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, इसलिए इसका नाम पार्शियली पोलराइज नाम रखा। ये प्लेन पोलराइज मीन्स कंप्लीटली पोलराइज क्यों? इट इज हैविंग ओनली डॉट्स। मुझे क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल वाइब्रेशन अंदर क्यों गए? बिकॉज दे आर एबल टू पेनिट्रेट। हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट, ये आपको पता ही है। उसके बाद मैंने बताया था रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। बात करें, चलो
ये आपको पता ही है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे ये 90 डिग्री होती है एक मेरे को, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब प्रूफ देखता हूँ मैं, ये तो थेरी है, ये मैंने थेरी आपको बताया था, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल यहाँ लगा के आई प्लस आर पी इज 90 डिग्री, ओके। आगे बढ़े तो इसमें पुट करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन आर, आर की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू यहाँ से डाली मैंने, यहाँ देखो तो 90 माइनस आई पी, तो म्यू इज इक्वल टू 10 आई पी। मैंने अभी स्टेप स्किप कर दी, ज़्यादा टाइपिंग करने को जम नहीं रहा था बराबर। और ये मैंने बताया आपको कि सिंपलेस्ट वर्ड में बताएं, बट बिलीव मी इसका मीनिंग जो है बहुत डीप है कि लाइट आती है, लाइट अंदर जाती है और कुछ वापस आती है। जो लाइट बाहर आती है वो प्लेन पोलराइज होती है, लाइट जो अंदर जाती है वो पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। सो मैं मानता हूँ कि आपको समझा होगा। कल हम मॉलूज लॉ पढ़ने वाले हैं, ये मॉलूज लॉ कल पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि पोलराइजेशन पढ़ा, ये फिनोमिना पढ़ा कि इसमें पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, टाइप करने को टाइम नहीं था मेरे पास और गर्मी हो रही थी बहुत, इसलिए मुझे पता है कि आपको स्टेटमेंट लर्न है कि टेंजेंट टू द पोलराइजिंग एंगल, मेरे साथ बोलते जाएंगे, टेंजेंट टू द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम वेयर पार्शियल रिफ्लेक्शन इज टेक्स प्लेस। फिर से बोल रहा हूँ, टेंजेंट टू द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम वेयर पार्शियल रिफ्लेक्शन इज टेक्स प्लेस। थैंक यू, आपने आई अप्रिशिएट कि आपने यहाँ तक लेक्चर देखा, क्योंकि 21-22 मिनट्स हो चुके हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अरेंज PPTs एंड डू द वीडियो, दिस काइंड ऑफ वीडियो, बट ऑफकोर्स आप स्टूडेंट हो, आपके लिए करना है। यू स्टूडेंट्स आर लाइक डिक्शनरी, यस यू आर लाइक डिक्शनरी, यू आर रियली एडिंग मीनिंग टू माई लाइफ, अदरवाइज ये क्वारंटीन में तो कुछ नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट वेलकम, आई ऑलरेडी प्रॉमिस आई विल बी डूइंग द पोलराइजेशन ऑन द PPT, so let's start without wasting time. So observe this image carefully. This is also a good explanation for the Brewster law, where we observe a partial reflection and partial reflection. How we are observing the partial reflection? As we can see the light on the surface, as we are observing the light, so it must be reflecting back. We observe the things only when it reaches to our eyes. So as we are observing the color, light, it must be reflected. That light which is reaching towards eye, having low intensity, but of course it is polarized light. So see this, it is actually the polarized light. So this is one of the phenomena. Now we will understand the polarization one by one. Okay, so be focused. Okay, next start. So I already told polarization is possible for only a transverse wave. Transverse wave means light wave. Now we are using the animations for same. Let's start. This is a narrow slit. Narrow slit means any narrow slit, like in the 8th standard, 7th standard you already done with the effect, like light आती है एक small pinhole से and it pass like transverse wave having vertical vibration. This is direction of propagation. See the animation. This is the transverse wave which is propagating to the narrow slit. See this, it is propagating without any disturbance. Okay, what you observe is the wave is propagating like this because the wave is vibrating up and down. So it is very easy for the wave to pass through this narrow slit. Okay, now move forward. If I rotate this narrow slit, this is the wave. Now let me rotate this narrow slit. This narrow slit, let me rotate. When I rotate this narrow slit like this, observe. Now the light is not passing. Sir, why light is not passing? Because the narrow slit only allow which type of vibration? The vertical vibration. And now as it is become horizontal, it will allow which type of vibration? It is allowing the horizontal vibration.
as it is allowing the horizontal vibration, the vertical vibration will not pass. So this is the phenomena of restriction of vibration of light into a single plane. Either it is vertical, either it is horizontal. Such a mahan phenomena, it is called as polarization. Let's understand the exact definition of polarization. This is natural source. In the natural source, light vibrate in which direction? The question is, light vibrate in the all direction. Light vibrates in the all direction. It is very important. Light vibrate in a all direction in a straight line. Okay. Now, this is, you have to answer. This is which type of wave? The natural wave which is unpolarized. Unpolarized means there is a vertical vibration as well as horizontal vibration. So, this is what important. This is the source of unpolarized light. It is a representation. Now, this is vertical. Vertical means a parallel to the plane of the plane of the screen. This is perpendicular, means going inside. Going inside means the perpendicular. Perpendicular means going inside. And parallel means the parallel to the plane, vertical vibration. Okay. Now, the important point is, this is what representation. You already know it. I already covered in the lecture. The important is only इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ये पॉइंट देखे यार, पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये रामबान है बिल्कुल. इन द पोलराइजेशन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फिर से दोहरा रहा हूं, कौन सा वेक्टर? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी पोलराइज. यू कांट पोलराइज द मैग्नेटिक फील्ड. नीट वाले ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी पोलराइज, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी पोलराइज. मीन सर, पोलराइजिंग जो हम कर रहे हैं अब तक, वो कौन सी फील्ड का है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का पोलराइजेशन होता नहीं है. क्यों नहीं होता, इसका आंसर आपने मुझे बताना है. ओके, वाई द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी पोलराइज, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोलराइज. यानी अब तक जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन है. आगे बढ़े, एग्जैक्टली डेफिनेशन बात करते हैं. अक्टूबर 2009, मार्च 2010, मार्च 2015 और अक्टूबर 2018 में भी आया है. तो ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको 2-3 बार वो लिखा है कि 3-3 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो डेफिनेशन एक बार पढ़ ले. द फिनोमिना, एक एक लाइन टू लाइन जाता हूँ. फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ सिंगल प्लेन, कोई भी पर्टिकुलर प्लेन, कॉल्ड एज, कौन सी बेटा? द पोलराइजेशन. इट इज अ फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्शन. वर्ड रेस्ट्रिक्शन आया बेटा, पूरे मार्क. Phenomena of restriction of vibration of light into a single plane called as polarization. It is very important. Take a note. Now, let's move. This is what the polarizer. Sir, what is mean by polarizer? How to do polarization? You don't explain कि actually how light get polarized. Light कैसे polarize होती है? आपने कैसे explain कहीं किया ही नहीं. कैसे होता है वो तो बताओ. देखो, नेचर से अपने आप पोलराइजेशन होने वाला फिनोमिना रिफ्रैक्शन, मैंने आज क्लास में ब्रूस्टर लॉ पढ़ा है. रिफ्लेक्शन से होता है, स्कैटरिंग से अपने आप पोलराइजेशन होता है, बट आर्टिफिशियली भी पोलराइजर होते हैं. तो हमारे पास क्रिस्टल है, टर्मालाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म. देखो, टर्मालाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, आयोडोक्विनिन सॉल्ट ऑफ हेरेप्थाइट, हेरेप्थाइट भी बोलते हैं उसको, आयोडोक्विनिन सॉल्ट, ये भी आपको एज अ पोलराइजर एक्ट करता है. डाइक्रोइक क्रिस्टल भी पोलराइजर एक्ट करता है. सर, होते क्या है? ये क्रिस्टल होते हैं. व्हाट इज पोलराइड? वन वर्ड में बताओ, व्हाट इज पोलराइड? मींस जो पोलराइजेशन करता है, आर द स्मॉल टाइनी क्रिस्टल ऑफ द डाइक्रोइक सब्सटेंसेस. डाइक्रोइक का मतलब जो लाइट को दो भागों में तोड़े. द पोलराइजर्स आर द कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स of dichroic substance. ऐसे dichroic substance which are arranged parallel or a vertical so that they can pass light having only one direction. फिर से समझाता हूं. सर, पोलराइड्स क्या होते हैं? पोलराइड्स आर दी मटेरियल्स. It is made up of the small tiny crystal which are arranged parallel so that light of only one direction pass through them. Such a mahan devices called as the polaroids. In the polaroids, the molecules, small molecules having such a type of orientation so that the light of only one direction pass through it. Sir, फिर आपने देखा होगा कोई मेडिसिन होती है, उसकी बॉटल देखो ब्राउन कलर की होती है. एरोप्लेन के ग्लास देखो आप, उसके बाद वॉचेस देखो, उसके बाद मैंने आपको 3D सिनेमा बताया था, पोलराइड सन ग्लासेस होते, लेंसेस होते. व्हाट एग्जैक्टली उनका फंक्शन है? तो लॉजिक है उसके पीछे बेटा.
they block a light in a particular direction and allow the light in only one direction. Such a arrangement we need for the purpose of polarization. Okay, so this is what one of the example called as tourmaline crystal. It act as a polarizer. Which polarizer, sir? Natural polarizer. Tourmaline crystal act as a natural polarizer. It is natural polarizer. Okay, now see, when light pass through tourmaline polarizer, this is analyzer. Sir, what is analyzer and what is polarizer, sir? Tourmaline crystal is both crystals are same crystal. Why they are same? Because they are having same structure, same geometry, they are same. So what is the purpose of second polarizer? Second polarizer will ensure that light passes through first polarizer is either vertical or either horizontal. देखो एक बार फिर से, सेकंड पोलराइजर का फंक्शन क्या है? पहले पोलराइजर से लाइट कौन सी आएगी भाई? वर्टिकल. यहां तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी रहेगी, पर आएगी कौन सी? सिर्फ वर्टिकल. तो ये अगर पोलराइजर है तो ये भी कौन सी लाइट पास करेगा? सिर्फ वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल लाइट को आने देगा क्या? नहीं. तो ये मेन फंक्शन है इसका. किसका? एनालाइजर का. अब देखते हैं एनिमेशन से तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, ज्यादा ये नहीं करते. तो देखो ये कौन सी लाइट है बेटा? बोलो ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज. कौन सी लाइट पास हुई? पोलराइज. अरे ये वाली लाइट जैसी गई इधर भी वही तो आई. सर क्या फर्क हुआ इसमें? सेकंड वाले ने, इसका काम क्या हुआ? इसने कुछ नहीं किया, इसने वर्टिकल लाइट को पास किया. फिर क्या? अब दूसरे स्लाइड समझे, तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा. देखो, हाँ ये पोलराइजर है. इसने कौन सी लाइट पास की? देखो 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 देखो, कौन सी लाइट पास की? वर्टिकल. अच्छा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं सेकंड वाले पोलराइजर को, तो यहां लाइट मिलेगी क्या? नहीं. क्यों सर? क्योंकि इस वाले ने सिर्फ कौन सी लाइट पास की? वर्टिकल. अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, लेट सी, अब यहां कोई भी लाइट नहीं है. इसका मतलब पहले वाले इसने ये वाली लाइट के सिर्फ कौन से वाइब्रेशन पास किए? वर्टिकल. अगर कुछ हॉरिजॉन्टल होते तो यहां हॉरिजॉन्टल नजर आते ना, यहां हॉरिजॉन्टल नजर आते, पर यहां हॉरिजॉन्टल है क्या? वहां नो लाइट है. इसका मतलब पहले वाले पोलराइड ने सिर्फ कौन से वाइब्रेशन पास किए? वर्टिकल, जो कि यहां नजर आ रहे थे. सेकंड, अगर हमने उसको रोटेट किया तो हम देखते हैं वहां कौन नहीं है? हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन. यानी पहला वाला जो क्रिस्टल है वो क्या करता है? पोलराइज करता है. इसलिए सेकंड वाले क्रिस्टल को हम बोलते हैं एनालाइजर, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट कि भाई पहले वाले ने वर्टिकली ट्रांसफर किए क्या, कि इज देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन. नहीं है कोई भी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन. अगर यहां हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन इसने पास किए होते यहां कुछ, तो यहां कुछ दिखते, पर नहीं लाइट, कुछ भी लाइट नहीं आई. इसका मतलब यह है कि दिस एक्ट एज अ पोलराइजर एंड दिस एक्ट एज सेकंड टर्मालिन क्रिस्टल एक्ट एज अ एनालाइजर. ये आपको क्लियर होना चाहिए. आगे आगे बढ़ते थोड़ा, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको अटेंशन देना पड़ेगा. ओके, अब देखो पोलराइजर एनालाइजर का अगर एनालिसिस और करेंगे तो मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी. प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. मेरे को बिल्कुल टाइप करने को बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. टाइप करते करते मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था टाइप करते, बट मतलब टाइप कर लेता हूँ बिकॉज आपको लर्न होना चाहिए. एग्जैक्टली आई नो कि आपको लर्न है, आपको याद है, तभी भी मुझे रिपीट करना मैं करता हूँ. एक पोलराइजर है, एक एनालाइजर है. देखो एनिमेशन देखो, ये लाइट है, कौन सी लाइट बेटा? वर्टिकल वाइब्रेशन. और ये कौन से वाइब्रेशन पास हुए? वर्टिकल. सर इधर भी कौन से पास होंगे? वर्टिकल. देख डेफिनेशन देख, ये क्या है सर? ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. सर आपने बहुत बताया था, द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ कौन से लाइट बेटा? पोलराइज लाइट टेक्स प्लेस. क्यों पोलराइज लाइट? क्योंकि इसने कौन सी पास की? पोलराइज लाइट. यहां से कौन सी लाइट आई? पोलराइज. द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ कौन से लाइट? Polarized light takes place. Such a महान plane is called as plane of polarization. ये डेफिनेशन यहां लास्ट में. The plane in which कौन सी बेटा? Vibration of polarized light takes place called as plane of polarization. Plane of polarization. आगे बात करें, अब उसकी दूसरी बार डेफिनेशन कौन सी है? Plane of vibration. क्या है वो? It is a plane. देख रहे खूबसूरत देख. It is a plane perpendicular to the plane of vibration. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है. कौन? ये ब्लू, ये पिंक कलर का पेन दिख रहे हो आप, प्लेन. दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन.
प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है, वेयर नो वाइब्रेशन टेक्स प्लेस, नो वाइब्रेशन टेक्स प्लेस। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या क्या समझे आप? देखो एक बार फिर समझ आता हूं मैं, जल्दी जल्दी देखो 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 देखो, देखो जल्दी। हाँ ये देखो, ये प्लेन ऑफ क्या है? वाइब्रेशन। ये क्या है? प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वेयर नो वाइब्रेशन टेक्स प्लेस कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन बताई थी, द प्लेन इट इज अ लाइट वेयर द वाइब्रेशन कौन से बेटा? रेस्ट्रिक्टेड इन कौन से डायरेक्शन? वन डायरेक्शन। डिफरेंस देख लो पोलराइज, एक बार पूरे डेफिनेशन आपको लर्न है क्या देख लो एक बार, आपको है क्या नहीं है। जिसने नोट नहीं किया होगा वो नोट कर सकता है, देखो नोट कर लो। ये पूरी स्लाइड है आपके लिए, नोट कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं जानता हूं कि आपको सब लर्न है, बट सर ने बोला था एक बार और रिपीट करना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोलराइज एंड अनपोलराइज लाइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन polarized and unpolarized light means polarized light which in which electric field confined to the one plane। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है वन प्लेन। और यहाँ कैसा है बेटा? इंपॉर्टेंट वर्ड है इन विच इट वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। कभी कभी डिफरेंस भी पूछता है, पूछेगा नहीं अभी, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ कौन सा प्लेन? वन प्लेन। और यहाँ कौन से? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन देखो, अनपोलराइज लाइट ऐसी ऐसी चारों तरफ, पर पोलराइज लाइट मैंने आपको बताया था ये कौन से वाइब्रेशन है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन से वाइब्रेशन है? वर्टिकल। सो दैट आपको पूरा क्लियर हो टॉपिक, इसलिए मैंने ये आपको डिफरेंस भी आपके सामने लाया है कि यहाँ वन डायरेक्शन होता है या ऑल डायरेक्शन होता है या रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिर्फ पोलराइजेशन होता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोलराइड्स के यूजेस क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों ने पूछा सर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मैं वो चैटिंग में तो आंसर दे सकता नहीं, मेरी चैटिंग स्लो है। तो लार्ज पोलराइड्स क्या होते हैं? लार्ज शीट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल पैक्ड विद द डाइक्रोइक सब्सटेंस। डाइक्रोइक का मतलब जो किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा? स्प्लिटिंग, ओरे एंड ईरे। ओरे और ईरे में स्प्लिट करने वाले को बोलते हैं डाइक्रोइक सब्सटेंस। दे आर ओरिएंटेड पैरेलल, वर्ड इंपॉर्टेंट, पैरेलल टू ईच अनदर, सो दैट लाइट ऑफ ओनली वन डायरेक्शन पास थ्रू देम कॉल्ड एज पोलराइड। पोलराइड्स आर मेड अप ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल like tourmaline crystal, dichroic substance. They are arranged parallel, important word, they are arranged parallel. काय के लिए arrange किए? So that the light of only one direction pass through them called as polaroid. ओके, पोलराइड्स के यूजेस है बेटा सन ग्लासेस में, पोलराइड्स फिल्टर, लेबोरेटरी, हेडलाइट्स, ग्लेयर, ऑटोमेटिक में आप यूज करते हैं, 3 डायमेंशन सिनेमा मैंने बताया, विंडोज ऑफ प्लेन, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसकी शील्ड, विंड शील्ड में होते हैं, मैंने बताया था आपको, ऑडी के वगैरह इसमें होते हैं। ये कॉमन पोलराइड का पिक्चर है, ये आप देख सकते हो कहीं भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लैब में देखोगे, फिजिक्स के लैब में पोलराइड्स, ये अपने फिजिक्स के लैब में अवेलेबल, आप कभी भी जाओ विजिट करो, ऐसे पोलराइड्स होते हैं। तो होशियार बच्चे समझे कि एंगल चेंज करने से भी आने वाली लाइट कम ज़्यादा होती। जैसे एंगल कितना डिग्री किया मैंने, 9, बिल्कुल वर्टिकल है तो लाइट आएगी 50%, और 45 कर दिया तो 25% लाइट आएगी। सो ये पोलराइड्स कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको अगर पोलराइड्स बनाना है, मेरे पास था एक्चुअली पर अभी दिख नहीं रहा है, मैं देखूंगा, और दिख गया तो मैं कल के वीडियो में दिखाता हूँ कि पोलराइड्स क्या होते हैं। मोबाइल की स्क्रीन होती है ना, मोबाइल की स्क्रीन, किसी के घर में मोबाइल खराब वाला होगा, उसकी स्क्रीन निकालो, उसकी स्क्रीन निकालोगे, उसके स्क्रीन पे आपको एक लेयर दिखेगी ब्लैक कलर की, एक आगे होती है और एक पीछे होती है। आगे और पीछे की लेयर आप देखोगे ना तो आपको पोलराइड्स मिलेगा ब्लैक कलर का, इस प्रकार से होता है। तो उसको निकाल के आप क्या करो, दोनों को ऐसा एक में एक पे ओवरलैप करो, एक ऐसा पोलराइजर लो और दूसरा ऐसा हॉरिजॉन्टल लो, तो तुमको जो सरफेस दिखेगा वो डार्क दिखेगा। और अगर उन दोनों को वर्टिकली अरेंज किया आपने तो आपको कैसा दिखेगा? ब्राइट। अगर आपने इसको अरेंज किया ऐसा और दूसरे को अरेंज किया ऐसा तो आपको डार्क दिखेगा, और दोनों को वर्टिकली अरेंज किया तो आपको कैसा दिखेगा? वाइट दिखेगा। इसका मतलब पोलराइड्स वर्क करता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन। मैं देखता हूँ मेरे कौन से बुक में रखी हो, बट ये आपके फिजिक्स में लैब में अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सर आपने क्लास में पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट करो। ये नेचुरल फोटोग्राफ से अगर पोलराइड्स यूज़ करें ना करें, देखो ये बिना विदाउट पोलराइजर है, ये विद पोलराइड है। तो आप जो लेंसेज वगैरह यूज़ करते हैं वो पोलराइड लेंसेज होते हैं। तो ये पोलराइड लेंसेज क्या होते हैं?
अनवांटेड लाइट को फिल्टर कर देते। तो आप इंस्टाग्राम पे फिल्टर यूज करते तो वो भी एक प्रकार के डिजिटल पोलराइजर होते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग नाम की चीज होती है, यू विल अंडरस्टैंड आप सामने जाके। सो इन दैट वी यूज अ फिल्टर। सो वो फिल्टर जो होते हैं इट्स ऑल्सो एक्ट एज अ डिजिटल पोलराइजर। ओके, तो ये इमेजेस है। अब देखो पोलराइजेशन कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मुझे आज स्टार्टिंग के लेक्चर में किसी ने पूछा था कि सर पोलराइजेशन कैसे कैसे क्रिएट कर दिया जाता, वो आप मेथड बताइए। तो पहली मेथड है रिफ्लेक्शन, बताई मैंने। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन कैसे, लाइट को इंसिडेंट करो वापस बुलाओ। स्कैटरिंग, लाइट गिरती है छोटे 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 पार्टिकल की और चारों तरफ फैल जाती है, उससे होता है। रिफ्रैक्शन से सीखा है ब्रूस्टर लॉ। प्रॉपर्टी ऑफ डाइक्रोइक प्रिज्म, डाइक्रोइक प्रिज्म का मतलब कैल्साइट क्रिस्टल लो, क्वार्ट्ज मटेरियल लो, इनके ऊपर जैसे ही लाइट गिराओगे आप, होगा क्या बेटा, इससे आपको क्या मिलेगी, पोलराइड लाइट मिले। और लास्ट में तो आपको बताया मैंने पोलराइड्स नाम के ग्लासेस होते हैं, ये होते हैं। इस मटेरियल से भी आप क्या यूज कर सकते, क्या बना सकते बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट बना सकते हो। तो आपको 4 पॉइंट होने चाहिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। ये इतना बुक में डिटेल में नहीं दिया बट यू शुड नो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं कि ब्रूस्टर लॉ क्या है, मैं यहां ज्यादा आपको ये नहीं करूंगा। ये है बेटा म्यू, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नॉर्मल है, ये लाइट है। ये कौन सी लाइट है, अनपोलराइज लाइट। ये कौन सा एंगल है बेटा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो, उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर एंगल ओनली द लाइट गेट पोलराइज। ओके, नाउ कौन से वाइब्रेशन अंदर गए, देखो ये डॉट छोड़ना नहीं बेटा, देखो मैंने बनाने में बिल्कुल छोड़ा नहीं है। देखो डॉट, कौन सा, एक डॉट आया, एक डॉट आया, बाकी डॉट इधर चले गए। इसका मतलब आप गौर से देखोगे तो यहाँ एक डॉट आया, बाकी डॉट इधर, इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया मैंने पार्शियली। पार्शियली का मतलब यहाँ वर्टिकल वाइब्रेशन भी है, कुछ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, एक ही हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, इसलिए इसका नाम पार्शियली पोलराइज नाम रखा। ये प्लेन पोलराइज मीन्स कंप्लीटली पोलराइज क्यों, इट इज हैविंग ओनली डॉट्स। मुझे क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल वाइब्रेशन अंदर क्यों गए, बिकॉज दे आर एबल टू पेनिट्रेट। हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट, ये आपको पता ही है। उसके बाद मैंने बताया था रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। बात करें, चलो ये आपको पता ही है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे ये 90 डिग्री होते हैं मेरे को, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब प्रूफ देखता हूं मैं, ये तो थ्योरी है, ये मैंने थ्योरी आपको बताया था, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल यहां लगा के आई प्लस आर पी इज 90 डिग्री। ओके, आगे बढ़े तो इसमें पुट करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन आर, आर की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू यहाँ से डाली मैंने, यहाँ देखो तो 90 माइनस आई पी, तो म्यू इज इक्वल टू 10 आई पी। मैंने अभी स्टेप स्किप कर दी, ज़्यादा टाइपिंग करने को जम नहीं रहा था बराबर। और ये मैंने बताया आपको कि सिंपलेस्ट वर्ड में बताया, बट बिलीव मी इसका मीनिंग जो है बहुत डीप है कि लाइट आती है, लाइट अंदर जाती है और कुछ वापस आती है। जो लाइट बाहर आती है वो प्लेन पोलराइज होती है, लाइट जो अंदर जाती है वो पार्शियली पोलराइज लाइट होती है। सो मैं मानता हूँ कि आपको समझा होगा। कल हम मॉलूज लॉ पढ़ने वाले हैं, ये मॉलूज लॉ कल पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि पोलराइजेशन पढ़ा, ये फिनोमिना पढ़ा कि इसमें पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, टाइप करने को टाइम नहीं था मेरे पास और गर्मी हो रही थी बहुत, इसलिए मुझे पता है कि आपको स्टेटमेंट लर्न है कि टेंजेंट टू द पोलराइजिंग एंगल, मेरे साथ बोलते जाएंगे, टेंजेंट टू द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम वेयर पार्शियल रिफ्लेक्शन इज टेक्स प्लेस। फिर से बोल रहा हूँ, tangent to the polarizing angle is equal to refractive index of refracting medium where partial reflection is takes place। थैंक यू, आपने बिल्कुल आपने आई अप्रिशिएट कि आपने यहाँ तक लेक्चर देखा, क्योंकि 21-22 मिनट्स हो चुके हैं। एक्चुअली it is very difficult for me to arrange PPTs and do the video, this kind of video, but of course आप स्टूडेंट हो, आपके लिए करना है। You students are like dictionary, yes you are like dictionary, you are really adding meaning to my life, otherwise ये क्वारंटीन में तो कुछ नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।